तो लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ क्राइम। लॉ ऑफ क्राइम में जो क्राइम शब्द है वो लिया गया है लैटिन भाषा से। शब्द है क्रीमन, CRIMEN। उसके बाद में इसमें हमने जो है दो डेफिनेशंस पढ़ी थी। पहली स्टीफन के द्वारा दी गई थी। वो बोलते थे कि भाई क्राइम इज said to be an act which is both forbidden by law and against the moral sentiment of society। क्राइम क्या है? which is forbidden by law and against the moral sentiments of society। एंड दूसरा जो था वो ये था कि भाई बेंथम के द्वारा दी गई थी offenses are whatever the legislature has prohibited for good or bad reasons। इसके बाद में हमने पढ़ा था एलिमेंट ऑफ क्राइम, जिसमें पहला एलिमेंट है द एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय अ ह्यूमन बीइंग। दूसरा है एन इवल इंटेंट ऑन द पार्ट ऑफ सच ह्यूमन बीइंग। तीसरा है कमिटेड और omitted in furtherance of such event। and fourth is an injury to another human being or to society at large by such act। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। द स्टेज ऑफ क्राइम और एलिमेंट ऑफ क्राइम इंक्लूड इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड अकम्प्लिशमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ a crime includes all the elements। Some of these elements are even punishable before the accomplishment of crime। All the stages can be explained further as follow। तो स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या है? पहला आपका इंटेंशन होना चाहिए, आपने प्रिपरेशन करा, अटेम्प्ट करा और अकम्प्लिश करा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉल्ड क्राइम। उसके बाद में क्या है कि कुछ इसमें से सम ऑफ दीज एलिमेंट्स कैन इवन पनिशेबल इवन बिफोर अकम्प्लिशमेंट। अगर आपने अकम्प्लिश भी नहीं करे और इनमें से कुछ इवेंट करे तब भी आपको वो क्राइम के डेफिनेशन में आ जाएंगी कुछ चीजें। कब आएंगी वो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें अब आ जाते हैं इंटेंशन पे, जो हमारा सेकंड एलिमेंट है इंटेंशन। द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ए क्राइम आर मेंसरिया एंड एक्टसरिया। द former being the intention to commit a crime and the later being act done in the furtherance of the intention। The criminal liability of a person shall be decided only when he or she has a mala fide intention। It is the direction of conduct towards the objects chosen upon considering the motive which suggest the choice। Mere intention shall not constitute a crime, as it almost impossible to know the intention of a person। Since it is hard to know the intention of a man, a criminal liability at these stages cannot be drawn। Mens rea। Mens rea is literally means a guilty mind। This basically implies that a person committing a crime is mindful of his her action। उसको पता है and knows that the accomplishment of act would result in a crime। To simplify the intention of a person committing a crime should be malified। Further, mens rea can be further divided into 4 levels। पहला level है negligence, second level is recklessness, third level is knowledge, fourth is intention। Negligence means the intention, this is the least and in fact the mildest form of mens rea, where a person is negligent of his or actions and does not ensure reasonable care in his or act or omission। negligence मतलब कि आप कोई एक्ट ऐसा करना नहीं चाहते थे इंटेंशनली, आपकी इंटेंशन ओनली 0.01% थी लेकिन वो हो गया गलती से। दूसरा recklessness means this is slightly higher amplitude than negligence, where the person can anticipate the crime which may arise out of the act or omission but did not accept or intended the same and act negligently। मतलब कि कोई ऐसा एक्ट आपने करा जिसका आपको पता था कि भाई अगर हम ये एक्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आप वो उसका आउटपुट वैसा नहीं चाहते थे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नेग्लिजेंस में आप 0.01% आपका इंटेंट था और आपसे वो चीज़ हो गई और गलती आप मान रहे हो कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, बट
मेरे मेरे से वो चीज़ हो गई या उसने कर दी वो चीज़, नेग्लिजेंस में हो गई। रेकलेसनेस में आपको पता है कि इससे ये चीज़ हो सकती है, लेकिन आप चाहते नहीं कि उसका जो इंटेंट जो है उसका आउटपुट जो है उसका वो रहे। थर्ड इज नॉलेज। द थर्ड लेवल इज नॉलेज वेयर द पर्सन इज एसोसिएटेड विद द रिस्क that may occur on his act or omission and still continues with such act or omission। here he and she is not negligent। मतलब आप negligent नहीं है, आपको पता है कि ये ऐसे होने से ऐसा हो सकता है, उसके बाद भी आप सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे हैं और आपने वो चीज़ को किया। एंड फोर्थ इज इंटेंट। दिस इज द मोस्ट हाईएस्ट एम्पलीट्यूड वेयर द पर्सन इंटेंशनली कैरीज आउट an act or omits something in order to commit the crime। तो पहला नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस, थोड़ा और उससे ऊपर का लेवल नॉलेज आपको पता है, इंटेंट है, फिर भी आप सोचोगे चलो देखी जाएगी जो होगा। फोर्थ इंटेंट, मतलब कि आपने इंटेंशनली उस चीज़ को किया है। अब क्या होता है कि ओनली मेंस रिया इज नॉट द एलिमेंट, वन ऑफ द अदर एलिमेंट इज एक्टस ria। Actus rea is an act or omission on a part of a person which cause a crime and involves some physical activity। It is important. It is important to note that not just an act but an omission can also be act of crime। कोई आपने एक्ट किया वो तो क्राइम है ही, कोई आपने एक्ट नहीं किया, कोई गलती कर दी, वो भी ओमिशन भी आपका क्राइम हो सकता है। ह्यूमन बीइंग and an evil intent are enough to constitute a crime, are not enough to constitute a crime unless it is visible through some voluntary act or omission। Actus reus is such a result of human conduct as the law seeks to prevent। It is physical result of human conduct। For example, non-payment of taxes or maintenance is a crime। तो हमने इसमें पढ़ा एक्टस रिया। अब जब हम मेंस रिया पढ़ रहे थे तो उसमें एक लाइन आती है, उसको हम बोलते हैं एक्टस नॉन फेसिट रियम मिसी मेंसिट रिया। मतलब एक्टस नॉन फेसिट रियम मिसी मेंसिट रिया is a well-known law। It means that the act itself does not make a man guilty unless his intention were so। Intention is necessary to consider an act as a bad act। मतलब कि एक्ट करा है और उसकी इंटेंशन भी मेलाफाइड होनी चाहिए, दोनों चीज एक साथ से मिलके काम करती है। ठीक है। इसमें एक और बात है, एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट एन एक्ट एट ऑल। तो हमने पढ़ा क्राइम के बारे में कि भाई क्राइम क्या है, कुछ भी विच इज अगेंस्ट legislature which is prohibited by law for good or bad reasons, and which is against the society moral, और वो एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो क्राइम हो सकती है। क्राइम की स्टेजेस क्या हैं? इंटेंशन है, आपकी इंटेंशन है, उसके बाद में आपने प्रिपरेशन करी है, अटेम्प्ट किया है और उसको अकम्प्लिश किया है। इसके एलिमेंट क्या हैं? 4 एलिमेंट है। ह्यूमन बीइंग का होना ज़रूरी है। दूसरा एलिमेंट है मेंस रिया जिसमें आपका इंटेंशन होना ज़रूरी है। तीसरा है एक्टस रिया जिसमें आपने एक्ट करा है, कमिट किया है या ओमिट किया है। चौथा इंजरी होना ज़रूरी है। अगर ये चारों में से कोई एलिमेंट मिसिंग है तो वो क्राइम नहीं होगा। लेकिन कुछ केसेस में अगर चारों में से कुछ एलिमेंट मिसिंग है तब भी वो क्राइम हो सकता है। यानी कि अगर आपने इंटेंट किया, उसके बाद में आपने इंटेंट करने के बाद में उसको प्रिपेयर किया, इवन आपने एक्ट नहीं भी किया तब भी वो क्राइम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप प्लानिंग कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में, भारत के अगेंस्ट में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने जो मेंस रिया था उसमें हमने 4 जो उसके लेवल थे वो पढ़े। पहला लेवल नेग्लिजेंस, दूसरा रेकलेसनेस, तीसरा नॉलेज एंड चौथा इंटेंट। नेग्लिजेंस मतलब कि गलती से 0.01% इंटेंट है आपका, रेकलेसनेस आपका इंटेंट ज़्यादा है, आपको नॉलेज, आपको पता है कि ऐसा हो सकता है लेकिन आप उसका आउटपुट वैसा नहीं चाहते, ठीक है। थर्ड नॉलेज, आपको पता है ये चीज़ का इफेक्ट ये हो सकता है लेकिन आप कर जाते हैं वो चीज़ की देखी जाए। एंड जो लास्ट है वो है इंटेंट, मतलब इंटेंशनली आप वो चीज़ कर रहे हैं सो दैट कि कोई हार्म हो। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट
पढ़ेंगे।